بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹی وی اور میں ہوں شاہزیب فاروق۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں بلیٹن میں ہیڈ لائنز۔ عمران خان رہبر پاکستان ہیں، وہ سسٹم سے مائنس نہیں ہو سکتے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس نے کہا کہ چیئرمین تحریک انصاف کا ایجنڈا پاکستانیت ہے۔ وفاق میں حکومت کا اثر ہونا شروع ہوا تو حکومت ختم کر دی گئی۔ بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے کی تکمیل، سرکاری ملازمین کے تبادلوں پر پابندی ختم۔ ڈویژن پونچھ اور میرپور میں تاحال پابندی قائم رہے گی۔ الیکشن کا ماحول پرسکون، عوام نے ذمہ داری کا ثبوت دیا۔ انتظامیہ کا بلدیاتی انتخابات مصنفانہ اور آزاد ماحول میں منعقد کروانے پر زور، یونین کونسلز میں جماعتوں کے معززین پر مشتمل کمیٹیاں تشکیل دی۔ برطانیہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے۔ 13% کمی کے بعد عیسائی پہلی بار ملک کی نصف آبادی سے بھی کم رہ گئے۔ برطانیہ کی کل آبادی کا 37% کسی مذہب کو نہیں مانتا، تعداد 22 ملین سے تجاوز۔ امریکی کھلاڑیوں کی ایرانی پلیئرز کو تسلی دینے کی ویڈیو وائرل۔ فیفا ورلڈ کپ کے اہم میچ میں امریکہ نے 0-1 سے ایران کو شکست دے دی۔ شکست کے بعد ایرانی ٹیم فیفا ورلڈ کپ ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی۔ چین میں کورونا وائرس کے 40,000 کیسز رپورٹ، پابندیوں کے خلاف احتجاج۔ کورونا وائرس کی حالیہ لہر سے چین میں 7 افراد کی ہلاکت۔ انتظامیہ کا کہنا تھا کہ خطرے والے علاقوں اور عمارتوں کا تعین کیا جائے۔ کنزرویٹو پارٹی لیبر سے 18 پوائنٹس پیچھے، رشی سوناک کو بہتر کارکردگی کی تنبیہ۔ نو منتخب وزیر اعظم کی معمولی سی بہتر کارکردگی بے اثر ہو گئی۔ ناقص کارکردگی پر ایم پی ایز بغاوت کا راستہ اپنا سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی مڈلینڈز نے پارٹی کا 55واں یوم تاسیس جوش و خروش سے منایا۔ تقریب میں جیالوں کی بھرپور شرکت، بھٹو زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے۔ بلاول بھٹو جلد قیادت سنبھال کر اپنے نانا کا مشن پورا کریں گے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ Whether you run a global corporation or a small business, keeping track of your company's finances is equally important. That's why at Taz Accountants, we believe that every business should have a team of accountants, An income tax preparer, a payroll processor. bookkeeper and a business advisor to advise you when you're just not sure what to do. We will even help you set up your new business. When you work with Taz Accountants, your own team of accountants is exactly what you'll get, no matter how large or small your business is. Give Taz Accountants a call on 0121 565 1885 Or on 0789 0669 148. ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے شامل کریں۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار تنویر الیاس نے کہا کہ عمران خان قائد پاکستان اور رہبر ہیں، اور رہبر سسٹم سے مائنس نہیں ہو سکتے۔ عمران خان نے اسٹیٹس کو چیلنج کیا ہے جو ہماری جڑوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ عمران خان کی مقبولیت ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان نے کہا ہے کہ عمران خان قائد پاکستان اور رہبر ہیں، اور رہبر سسٹم سے مائنس نہیں ہو سکتے۔ عمران خان کا ایجنڈا پاکستانیت ہے۔ عمران خان نے اسٹیٹس کو چیلنج کیا جو ہماری جڑوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ پاکستان کی ثقافت کو پروان چڑھایا، ایسے لیڈر بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔ سردار تنویر الیاس نے ان خیالات کا اظہار ایک پروگرام میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کا ذاتی کوئی ایجنڈا نہیں، ان کا ایجنڈا صرف پاکستانیت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وفاق میں جب ہماری حکومت کے اثرات آنا شروع ہوئے تو حکومت ختم کر دی گئی، لیکن ہم جہاں ہیں وہی ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک تحریک انصاف ہے اور ہر ایک عمران خان ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی پارٹی جوائن نہیں کی تھی، ہر پارٹی کی خواہش تھی کہ میں اس پارٹی میں شامل ہو جاؤں۔ مجھے راولپنڈی سے الیکشن کی آفر بھی ہوئی، لیکن میں نے بڑی سوچ بچار کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ پیدائشی بلیسڈ ہوتے ہیں، عمران خان ان میں سے ایک ہیں۔ عمران خان کی مقبولیت ہر دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ عمران خان شاہانہ زندگی بھی گزار سکتے تھے، مگر انہوں نے خطرناک راہوں کا انتخاب کیا، اور یہ اس ملک اور قوم
قوم کے لیے ہی کیا. وہ قبائلی بیک گراؤنڈ رکھتے تھے, عام آدمی کی حالت زار کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. عمران خان پاکستان کے سیاسی افق پر طلوع ہونے والا وہ ستارہ ہے جو کبھی غروب نہیں ہوگا. عمران خان نے شوکت خانم اور نمل یونیورسٹی جیسے غیر معمولی پروجیکٹ دیے. انہوں نے پاکستان کی ثقافت کو پروان چڑھایا, شلوار قمیض اور کوہاٹی چپل کو مقبول بنا دیا. پاکستان کے عوام عمران خان کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے. یہاں پر ایک اور خبر شامل کرتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے کی تکمیل پر سرکاری ملازمین کے تقرر و تبادلے پر لگائی پابندی ختم کر دی. آپ کو بتائیں کہ اضلاع میں بدستور پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا. ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ الیکشن کا ماحول پرامن رہا. شہریوں نے نہایت ذمہ داری کا ثبوت بھی دیا. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے کی تکمیل پر سرکاری ملازمین کے تقرر و تبادلہ جات وغیرہ پر لگائی پابندی کو ڈویژن مظفر آباد کی حد تک ختم کر دیا, جبکہ ڈویژن ہاپونچ اور میرپور میں پابندی بدستور قائم رہے گی. تفصیلات کے مطابق آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن کی جانب سے بلدیاتی انتخابات کے سلسلہ میں سرکاری ملازمین کے تقرر و تبادلہ جات وغیرہ پر ایک مکتوب کے ذریعے پابندی عائد کی گئی تھی. تاہم مظفر آباد ڈویژن میں بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے کی تکمیل پر الیکشن کمیشن نے متذکرہ ڈویژن کی حد تک پابندی ختم کر دی ہے, جبکہ ڈویژن ہاپونچ اور میرپور میں پولنگ بالترتیب 3 دسمبر اور 8 دسمبر کو ہونا باقی ہے. اس لیے ان دو ڈویژن میں تقرری و تبادلہ جات پر مکمل پابندی بدستور برقرار رہے گی. الیکشن کمیشن نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات کی تکمیل تک مظفر آباد ڈویژن سے متذکرہ ڈویژن میں کوئی تقرر و تبادلہ عمل میں نہیں لایا جائے گا, اور ناگزیر صورت میں ایسے کسی بھی تبادلہ کے لیے الیکشن کمیشن سے نرمی حاصل کرنا لازمی ہوگی. الیکشن کمیشن کے سینئر رکن راجہ محمد فاروق نیاز نے کہا کہ الیکشن کا ماحول پر امن رہا اور عوام نے ذمہ داری کا ثبوت دیا. میرپور اور پونچھ ڈویژن میں بھی امید ہے کہ عوام پر امن انداز میں اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے اور ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں گے. اور یہاں پر ایک اہم خبر شامل کرتے چلیں. آپ کو بتائیں کہ کمشنر میرپور چودھری شوکت علی کی جانب سے ڈویژن میں پرامن انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے پولنگ سٹیشنز پر سیکیورٹی کے ساتھ علاقہ کی جماعتوں کے معززین پر مشتمل کمیٹیاں بنانے کا اعلان کیا تاکہ وہ امن و ایمان کے قیام میں اپنا کردار ادا کر سکیں. مزید کیا ہوا جانتے ہیں اس رپورٹ میں. ڈویژن میرپور میں بلدیاتی انتخابات کو منصفانہ، آزادانہ اور پرامن ماحول میں منعقد کروانے کے حوالے سے حکومت آزاد کشمیر کی ہدایت کے مطابق کمشنر میرپور ڈویژن چودھری شوکت علی نے ڈویژن کی تینوں اضلاع میرپور، کوٹلی اور بھمبر کے ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت دی ہیں کہ وہ امن اور رابطہ کمیٹیوں کو فعال کریں تاکہ الیکشن مہم اور پولنگ کے دن پولنگ اسٹیشنوں پر سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ساتھ امن اور رابطہ کمیٹیوں کے معزز ممبران بھی امن و امان کے قیام کے لیے اپنا رول ادا کر سکے. کمشنر میرپور ڈویژن کی ہدایات پر تینوں اضلاع کے تمام حلقہ انتخابات اور یونین کونسلز پر مشتمل تمام جماعتوں کے معززین پر مشتمل کمیٹیاں قائم کر دی گئی، جنہوں نے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے انتظامیہ اور پولیس کے ساتھ بھرپور تعاون کا یقین دلایا ہے. اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ سابق صدر و وزیر اعظم سردار سکندر حیات خان کے فرزند سردار طارق سکندر انتظامیہ پر برس پڑے. رہنما مسلم کانفرنس سردار طارق سکندر نے اپنی پریس کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر کے بلدیاتی انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کے امکانات بڑھ چکے ہیں. شفاف انتخابات کی کوئی توقع نہیں ہے. موجودہ صورتحال میں مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں، اسلحے کا استعمال سرعام ہو رہا ہے، میری جان کو سخت خطرہ ہے. اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار ضلعی پولیس آفیسر ہوں گے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. رہنما مسلم کانفرنس سردار طارق سکندر نے اپنی پریس کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر کے بلدیاتی انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کے امکانات بڑھ چکے ہیں. شفاف انتخابات کی کوئی توقع نہیں ہے. موجودہ صورتحال میں مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں، اسلحے کا استعمال سرعام ہو رہا ہے، میری جان کو سخت خطرہ ہے. اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار ضلعی پولیس آفیسر ہوگا. قبل ازیں ایس پی کوٹلی کو آگاہ کر چکا ہوں کہ ان کا رویہ ٹھیک نہیں تھا. ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہیں لینے والے سرکاری ملازمین بوٹ پالشی بنے بیٹھے ہیں. یہ میرے پاس جو ہے نا وہ ٹیکس کے ڈاکومنٹ، یہ جو ہے نا میں گورنمنٹ کو جو ہے نا یہ پے کر رہا ہوں ٹیکس، اور یہ جو ہمارے ٹیکس کے اوپر جو ہے نا یہ وردی والے جو ہے نا وہ تنخواہیں لے رہے، اور یہ ٹیکس ہم اس لیے بڑھ رہے یہ کہ وہ جو ہے نا وہ کسی کے جوتے پالش کریں. میں عمران خان سے بھی جو اپیل کرتا ہوں کہ جو آپ کا وزیر اعظم یہاں موجود ہے ان کو پابند کریں کہ یہ جو بوٹ پالشیا جو یہاں افسر بیٹھے ہوئے بوٹ پالش کر کے جو ہے نا وہ
दूसरी पार्टी को खुश करना चाह रहे। आजाद कश्मीर के चीफ जस्टिस से अपील करता हूं कि निक्याल का अमला कानून के खिलाफ काम कर रहा है। यहाँ गन पॉइंट पर लोगों को डराया जाता है, लोगों में खौफ व हिरास फैलाया जा रहा है और कोई पूछने वाला नहीं। इंतजामिया के ताउन से क्लाशनकोव का इस्तेमाल आम हो रहा है। 2011 में यही लोग थे जिन्होंने अदालतों को जलाया था। मेरा कोई कसूर न होने के बावजूद मुकदमा बनाया गया। उनसे भी कहता हूँ कि आप भी इन चीजों पे जो है नजर रखें और गवर्नमेंट पाकिस्तान और आजाद कश्मीर गवर्नमेंट पे अपना भी असर रसूख है कि यहाँ एक जानदारी से और खुफिया राय दही से जो है ना यहाँ इलेक्शन हो सके। अगर यहाँ ओपन हुआ और ठप्पे मारते हुए अगर किसी ने देखा तो यहाँ जो है ना कत्लेआम होगा और इसमें जो है ना ये पुलिस जो है ना बराह रास्त इन्वॉल्व होगी, क्योंकि उन लोगों को उन्होंने क्लाशनकोव की इजाजत दे दी है कि हमारे जो है ना जो कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको डरा धमका के हम जो है ना अपने ठप्पे लगवाएं, उसके सामने ठप्पे लगवाएं। तो उस पर मैं शिकायत लेके गया था, लेकिन उन्होंने क्लाशनकोव का कोई नोटिस लेने की बजाय मुझे जो ना तक मेरे साथ रवैया अख्तियार किया। 2 ऑफिसर वहां मौके पर मौजूद थे, उनके सामने जो है ना मेरे पे उन्होंने एलिगेशन लगाए और मेरे तक का मैं रवैया अख्तियार किया और मजाक उड़ाया। सरदार तारिक सिकंदर एडवोकेट ने कहा कि जिन्होंने कानून अपने हाथों में लिया था और अदालतें जलाई थी, आज मेरे वालिद सलार जमहूरियत तहरीक आजादी के रहनुमा की तस्वीरें फाड़ी गई हैं, मेरे पोस्टर्स उतार दिए गए, मेरे पास सबूत है, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। रहनुमा ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सरदार तारिक सिकंदर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जामात के ढेर लगा दिए। कहा कि इन सब से ज्यादा टैक्स देने वाला मैं हूँ। निक्याल में इलेक्शन कराने वाले यकतरफा हैं और ऐसे हालात पैदा करवाए गए हैं जिनसे इलेक्शन गैर जानिबदारी से नहीं होगा। हालात खराब होने के कई इम्कानात हैं। बता देना चाहते हैं कि अगर हमारा कोई बंदा जाया हुआ तो जिले SSP जिम्मेदार होगा। और यहाँ पर शामिल करें कि पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के सदर डॉक्टर मुर्तज़ा ने अंदेशा जाहिर किया है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से 2 सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने से मुल्क में शदीद सियासी बहरान जन्म लेगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी इकॉनमी वॉच के सदर डॉक्टर मुर्तज़ा मुगल ने कहा कि PTI की जानिब से 2 सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने से मुल्क में ज़बरदस्त सियासी बहरान जन्म लेगा, जिससे मईशत की बेहतरी की रही सही उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। अपोजिशन अपने मफादात के लिए मुल्क की सलामती से खेलने और कौमी वसाइल के ज़िया के फैसले पर नजरसानी करे। ऐसे फैसलों से एक बार फिर लोटे खरीदने का सिलसिला चल निकलेगा। अहम फैसले सड़कों पर नहीं किए जा सकते, ना ही फौज को मुदाखलत की दावत देना दुरुस्त है। डॉक्टर मुर्तज़ा मुगल ने यहाँ जारी होने वाले एक बयान में कहा कि PTI सड़कों पर फैसले करना चाहती है और साथ ही नए इलेक्शन का मुतालबा भी कर रही है, जो हैरान कुन है। इमरान खान का ये ख्याल दुरुस्त नहीं कि मुल्क में सिर्फ इसी वक्त जमहूरियत होगी जब इख्तिदार इनके पास होगा। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। Fido Nido, an Arabica cafe, provides vital, nutritious food to vulnerable and homeless communities. To support our cause, visit fidonido.org.uk. और अब आपको आगाह करते चलें कि बरतानिया में गुज़िश्ता साल की गई मरदमशुमारी के मुताबिक मुल्क में सबसे ज़्यादा मकबूल होने वाला मजहब इस्लाम है, जबकि 13% कमी के बाद ईसाई पहली बार मुल्क की निस्फ आबादी से भी कम रह गए। ताहम बरतानिया में सबसे ज़्यादा अफराद का मजहब ईसाईयत ही है। मज़ीद हवाल देखते हैं इस रिपोर्ट में। बरतानिया में 2021 में की गई मरदमशुमारी में सबसे तेजी से मकबूल होने वाला मजहब इस्लाम है, जबकि 13% कमी के बाद ईसाई पहली बार मुल्क की निस्फ आबादी से कम रह गए। आलमी खबरसां अदारे के मुताबिक बरतानिया के इदारा बराए कौमी शमारियात ने मुल्क भर में 2021 में की गई मरदमशुमारी के इदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए, जिसमें दिलचस्प और हैरान कुन इंकशाफात हुए हैं। मजहब का सवाल 2001 में बरतानिया की मरदमशुमारी में शामिल किया गया था, जिसका जवाब देना लाजमी नहीं था। ताहम 94% लोगों ने जवाब दिया। तकरीबन 27.5 मिलियन अफराद ने खुद को ईसाई कहा, जो कुल आबादी का 42% बनता है। पहली बार ऐसा हुआ कि ईसाइयों की आबादी मुल्क की कुल आबादी के निस्फ से भी कम रह गई, यानी ईसाइयों की तादाद में 13% कमी आई। ताहम अब भी बरतानिया में सबसे ज्यादा अफराद का मजहब ईसाईयत है। दूसरे नंबर पर लादीन है, यानी जिन्होंने किसी मजहब को इख्तियार नहीं किया। इनकी तादाद 22.2 मिलियन हो गई, जो कुल आबादी का 37% बनते हैं। इस मरदमशुमारी में 3.9 मिलियन अफराद ने अपना मजहब इस्लाम बताया, जो आबादी का 6.5% है।
है। ख्याल रहे कि इससे कबल बरतानिया में मुसलमानों की आबादी शरह 4.9% थी। इस तरह इस्लाम सबसे तेजी से फैलने वाले मजहब के तौर पर सामने आया। मरदमशुमारी के मुताबिक बरतानिया में हिंदुओं की तादाद 10 लाख, सिख 5,24,000, बुद्ध मत के मानने वालों की तादाद 2,73,000 और यहूदियों की तादाद 2,71,000 है। सफेद फामों के बाद दूसरा सबसे ज्यादा आम नस्ली ग्रुप एशियाई, एशियन ब्रिटिश या एशियन वेलिश था, जो 7.5% से बढ़कर 9.3% हो गया। इस ग्रुप के अंदर ज्यादातर जवाबदेहगान ने अपने खानदानी विरसे की शनाख्त बिलतरतीब भारतीय, पाकिस्तानी और दीगर एशियाई जैसे बांग्लादेशी और चीनी के तौर पर कराई। इनके अलावा बरतानिया में तेजी से बढ़ता हुआ नस्ली ग्रोह अफ्रीकी और फिर करीबियन है। और यहाँ पर आपको बताएं कि कंजर्वेटिव पार्टी लेबर से 18 पॉइंट्स पीछे रह गई। पार्टी क़यादत का नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनाक से बेहतर कारकर्दगी दिखाने का मुतालबा। माहरीन कहते हैं पार्टी सर्विस के नताइज बेहतर ना हुए तो बहुत से MPs बगावत कर सकते हैं। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। एक नए सर्वे के मुताबिक कंजर्वेटिव पार्टी लेबर से 18 पॉइंट्स पीछे है और वजीर आजम ऋषि सुनाक को खबरदार किया जा रहा है कि उन्होंने पार्टी के सर्वे के नताइज बेहतर न बनाए तो मजीद कई बददिल MPs बगावत का रास्ता अपना सकते हैं। अंग्रेजी अखबार द इंडिपेंडेंट ने ऋषि सुनाक की एक माह की कारकर्दगी पर सर्वे किया, जिसके मुताबिक 46% लेबर की हिमायत कर रहे हैं, जबकि टोरीज को सिर्फ 28% की हिमायत हासिल है। ऋषि सुनाक के बाद वजीर आजम बनने पर पार्टी ने जो मामूली बेहतरी दिखाई थी, माहिरीन के मुताबिक अब ये बेअसर हो चुकी है और लेबर की वाज़े बर्तरी नया नॉर्मल रुझान बनती नजर आ रही है। पार्टी के दाएं जानिब की टोरी MPs खबरदार कर रहे हैं पोल नंबरों में बेहतरी न आई तो मौसम बहार के मकामी इंतखाबात में शदीद बेचैनी पैदा हो सकती है और हालात इस नहज को भी पहुंच सकते हैं कि इंतखाबात जीतने वाले बोरिस जॉनसन की वापसी की ख्वाहिश जोर पकड़ जाए। पोलिंग गुरु प्रोफेसर जॉन क्रेप्टिस का कहना है कि ये बात तो तय है कि मौसम खिजा के बजट के नतीजे में टोरी की किस्मतें हल्की सी भी करवट नहीं बदली। ऋषि सुनाक का जादू टूट चुका है। लेबर की इतनी बड़ी बढ़तरी का नतीजा आम इंतखाबात में उसकी वाज़े अक्सरियत की सूरत में बरामद हो सकता है। और यहाँ पर अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी मिडलैंड्स के ज़ेर एहतमाम बर्मिंघम के मुकामी रेस्टोरेंट में पीपल्स पार्टी के 55वां यौम तासीस का केक काटा गया, जिसमें बर्मिंघम भर से PP UK के अहदेदारान ने भरपूर शिरकत करके भुट्टो जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। शुरका का कहना है कि बहुत जल्द बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करके अपने नाना के अधूरे मिशन की तकमील करेंगे। मजीद अहवाल जानते हैं शकील जावेद की इस रिपोर्ट में। 55 साल कबल जिस कमरे में पार्टी की बुनियाद रखी गई, वो पार्टी अब चारों सूबों की जंजीरें बनकर दरख्त की सूरत इख्तियार कर चुकी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस पार्टी के प्लेटफॉर्म से मुल्क में कौम की खिदमत करते हुए जामे शहादत नोश की थी। गुज़िश्ता रोज पीपल्स पार्टी मिडलैंड्स के सदर शाहनवाज चौधरी ने बर्मिंघम के मुकामी रेस्टोरेंट में 55वां यौम तासीस के सिलसिले में एक केक कटिंग तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें बर्मिंघम भर से पाकिस्तान पीपल पार्टी के अहदेदारान ने भरपूर शिरकत करके भुट्टो जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मुख्तसर तकरीब के दौरान शुरका ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि कायद भुट्टो अवाम के मंशूर को देखकर मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक रखने वाले लोग पीपल्स पार्टी में शामिल होते रहे, जिनमें जागीरदार भी शामिल थे, सरमायादार भी और सरदार भी। मगर हकीकत यह है कि बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी मुद्दतों से इस्तेहसाल के शिकार गरीबों, मेहनत कशों, मजदूरों, किसानों और तालिब इल्मों की जमात के तौर पर सामने आई। कायद अवाम ने शाऊर की ऐसी शमा जलाई जो ताबनाक सूरज में तब्दील हो गई। कुचले हुए, महरूमियों के शिकार, पिसे हुए लोगों को शाऊर और जुबान मिल गई। नंगे पांव, फटे हुए लिबास वालों को हौसला और ताकत मिली। इस दौरान गुफ्तगू करते हुए चौधरी शाहनवाज, मिर्जा अख्तर, अंजुम जलाल और दीगर ने कहा कि पार्टी का हर जयाला भुट्टोइज्म का पैगाम और फलसफा हर घर, हर कोने में पहुंचाने के लिए पुरज़म है। शहीदों की ये जमात ही मुल्क के अंदर कमजोर तबकों की नुमाइंदगी करने वाली वाहिद सियासी जमात है। भुट्टोइज्म पाकिस्तान के मुस्तकबिल और आवाम की हकूक की तहफ़्फ़ुज़ की जमानत है। आज हम पाकिस्तान पीपल पार्टी का 55 यौम तासीस मना रहे हैं। 55 ईयर गो भुट्टो साहब ने लाहौर में पीपल पार्टी की बुनियाद रखी थी और उसके बाद पीपल पार्टी का जो मंशूर तैयार किया गया था, पाकिस्तान पीपल पार्टी ने सबसे पहले 73 का आइन पाकिस्तान को दिया। 25 साल से पाकिस्तान में कोई आइन नहीं था। जब भुट्टो साहब की हुकूमत बनी तो उन्होंने पाकिस्तान को 73 का आइन दिया। उस आइन के में शामिल होने वाले पाकिस्तान के जितने उलमा थे वो शामिल थे, पाकिस्तान के जितने सियासी लीडर थे वो उसमें शामिल थे। उन्होंने एक मुश्तरका तौर पर ये आइन बनाया और इस आइन में उन्होंने इस्लाम की झलक भी दी है कि जो भुट्टो साहब ने आइन बनाया है उसमें इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की है। उस आइन के मुताबिक उन्होंने
पाकिस्तान को एटमी ताकत भी दी है। आज पूरे मुल्क में यौम तासीस मनाया जा रहा है और आज हमने इस परचम तले इस बात का अहद किया है कि जो भुट्टो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो पौधा लगाया था वो पौधा इसी तरह से जारी और सारी रहेगा। इंशाअल्लाह ताला वो वक़्त दूर नहीं है जब आवाम को उनका हक़ मिल के रहेगा, कश्मीरियों को उनका हक़ मिल के रहेगा। हम अपने बाबा शहीद को सलाम अकीदत पेश करते हैं जिन्होंने मुल्क के इस्तेहकाम के लिए अपनी जानों का नजराना दिया, अपनी जान की परवाह न करते हुए असूलों की सौदेबाजी नहीं की, मुल्क को आइन दिया। और आज जिस मुल्क दोराहे पे खड़ा है जिस तरह से, और मेरे ख्याल में जिस तरह से देखा जाए तो जो मंशूर था वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया और आज उसी मंशूर पे पीपल्स पार्टी कायम दायम है। आज हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यौम तसीस के मौके पे इस चीज़ का ऐद करते हैं कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नज़रियात और विजन पे हम चल के हमेशा पीपल्स पार्टी के साथ हैं। और पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को 73 का आइन दिया, जो कि आज भी हमारे मुल्क में जो हमारा मुल्क है वो 73 के आइन के तहत चल रहा है। कुछ लोग इस वक्त से उस आइन पे उंगलियां उठा रहे हैं, जबकि ये जो लोग आज उस पे उंगलियां उठा रहे हैं इनके अबाव जदाद उस आइन बनाने में शामिल थे। आज के दिन हम ऐद करते हैं कि पीपल्स पार्टी के मंशूर को और उन पीपल्स पार्टी के विजन को इंशाअल्लाह जारी और सारी रखेंगे। और बिलावल भुट्टो बहुत जल्द वज़ीर आज़म पाकिस्तान में आ रहा है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो है मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। आज यौम तासीस के मौका पर मैं PYO UK और पीपल्स पार्टी के कारकुनों और जालूं को खराज तासीन पेश करता हूँ, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस अज़म का अदा करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मजबूती के लिए, जमहूरियत के इस्तेकाम के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। आज हम इस चीज़ का अहद करते हैं कि हम पीपल्स पार्टी में के ज़ेरे साया यकजा होकर और बिलावल भुट्टो की क़यादत में हम पीपल्स पार्टी को मजबूत करें और पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आएगी इंशाअल्लाह तो पाकिस्तान के मसाइल को वाहिद यही पार्टी है जो पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेगी। शुरा का कहना है कि आज शहीद भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के लख्ते जिगर बिलावल भुट्टो जरदारी अपने नाना और वालिदा के नक्शे कदम पर चलते हुए रोटी, कपड़ा और मकान के नारे के तहत पाकिस्तान को तरक्की दिलाने के लिए कोशिश है। दुआ है कि अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी मुंतखब हों। और यहाँ पर खेलों के मैदान से खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं कि फीफा वर्ल्ड कप के अहम मैच में अमेरिकी टीम की जानिब से ईरान को 0-1 से शिकस्त हुई, जिसके बाद ईरानी टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। अमेरिकी खिलाड़ियों की जानिब से ईरानी टीम को तसल्ली देने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। देखते हैं इस रिपोर्ट में। गुज़श्ता रोज़ कतर में खेले गए फीफा वर्ल्ड कप के अहम मैच में अमेरिका के हाथों ईरान को 1-0 की शिकस्त हुई, जिसके बाद ईरानी टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई, जबकि अमेरिका ने राउंड ऑफ 16 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। मैच में शिकस्त के बाद ईरानी खिलाड़ी ज़ारो कतार रो पड़े, जिस पर अमेरिकी खिलाड़ी इन्हें मैदान में तसल्ली देते नजर आए। समाजी राबते की साइट ट्विटर पर दोनों ममालिक के दरमियान सियासी तलखियों के बावजूद खिलाड़ियों के तर्ज अमल पर सार्फिन खुशगवार हैरानी में मुब्तला नजर आए, जबकि प्लेयर्स की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अमेरिका की जानिब से मैच का वाहिद गोल क्रिश्चियन पॉल्सिक ने 38वें मिनट में स्कोर किया था, जिसके जवाब में ईरान कई मरतबा अमेरिकी गोल पोस्ट पर हमला किया, ताहम गोल स्कोर करने में नाकाम रहे। और अब खबर शामिल करें सेहत के हवाले से। आपको बताएं कि चीन में कोविड-19 के केसेस में इजाफे के बाद हुकूमत की जानिब से लगाई गई पाबंदियों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरियों में अवामी एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। बीजिंग इंतजामिया का कहना है कि खतरे वाली इमारतों और इलाकों का तयन करके पाबंदियों में नरमी की जाए, जबकि शहरियों से रास्ते ब्लॉक ना करने की अपील भी की गई है। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीन में कोविड-19 के केसेस की रिकॉर्ड सतह पर पहुंचने के साथ साथ बीमारी की रोकथाम के लिए नाफिज की गई पाबंदियों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में लोगों का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने 28 नवंबर को कोविड-19 के 40,052 केसेस रिपोर्ट किए, जिनमें से 36,304 केसेस बगैर अलामात के मरीजों के हैं। ये कोरोना वायरस की वबा के आगाज से अब तक किसी एक दिन में चीन में रिपोर्ट होने वाले सबसे ज्यादा केसेस हैं। इसी तरह ये मुसलसल 5वां दिन है जब बीजिंग में 4,000 के करीब कोविड केसेस की तस्दीक
हुई। कोरोना वायरस की हालिया लहर के दौरान अब तक चीन में 7 अफराद हलाक हो चुके हैं। दूसरी जानिब जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ चीन के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे जारी हैं। एहतजाज का आगाज चीन के शहर अरमची में हुआ, जहां 25 नवंबर को अपार्टमेंट बिल्डिंग में आतिशज़दगी से 10 अफराद हलाक हो गए। आग लगने के बाद सोशल मीडिया पर कहा गया था कि इंतजामिया की जानिब से कोविड-19 की पाबंदियों के बायस आग को फैलने से रोकने के लिए दुरुस्त तरीके से काम नहीं किया गया। इसके बाद यह एहतजाज दीगर शहरों बशमूल बीजिंग, शंघाई और वुहान तक फैल गया, जिसमें लॉकडाउन के खात्मे का मुतालबा किया जा रहा है। लोगों के एहतजाज के बाद अरमची, बीजिंग और ग्वांगजू में कुछ पाबंदियों को नरम किया गया है। बीजिंग इंतजामिया का कहना है कि ज्यादा खतरे वाले इलाकों में घरों और इमारत का तयन किया जाएगा और मुजाहिरीन को कहा गया है कि वो अहम रास्तों को ब्लॉक न करें। एहतजाज के दौरान 27 नवंबर को बरतानवी नशरियाती इदारे के सहाफी को भी चंद घंटों के लिए हिरासत में लिया गया था। न्यूज बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कश्मीर टीवी।